پہلے ہم دنیا کے 3 بڑے محمد کی بات کریں گے، اس کے بعد پھر پاکستان کے 3 بڑے آفریدیوں کی بات کریں گے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ پہلے چلتے ہیں 3 محمد، یہ بڑے طاقتور نام ہیں۔ سب سے پہلے تو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان ہیں، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں متحدہ عرب امارات میں، ان میں ابو ظبی ریاست کے فرمانروا ہیں محمد بن زید ال نہیان، اور پھر ان کے ساتھ ہی ایک اور ریاست بھی ہے متحدہ عرب امارات کی ایک بڑی دوسری ریاست دبئی ہے۔ دبئی کے حکمران ہیں، فرمانروا ہیں جناب محمد بن راشد ال مکتوم۔ یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر انتہائی زیادہ طاقتور ہیں، ویژن رکھنے والے ہیں، اور اپنے عوام کے لیے جس طرح سے سوچتے ہیں جیسے ماں اور باپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ ان تینوں ممالک میں، تینوں ریاستوں میں ایسا ہے کہ ایک گھر اگر کسی جزیرے پر ہے، الگ تھلگ جزیرے پر ہے، یا کسی جنگل کے درمیان ہے، یا پہاڑوں کی اونچائی پر ہے، وہاں پہ زندگی کی ہر ممکن سہولت پہنچائی جاتی ہے، بجلی پہنچائی جاتی ہے، گیس پہنچائی جاتی ہے، مواصلات، سڑکیں پہنچائی جاتی ہیں، اور کمیونیکیشن کا پورا سسٹم وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر ریاست کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو پھر ان کے راشن کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو ایسے حکمرانوں کی حکومت کو، اقتدار کو، حکومت کو کسی قسم کا اپنے عوام سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی ان کے خلاف سازش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عوام کے دلوں کی دھڑکن بن جاتے ہیں، اور کوئی اپنی دھڑکن کو کبھی بند کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تو باقی ممالک یا ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کے بارے میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے کیا سوچتے ہیں، اپنے لیے کیا سوچتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا سوچتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ وہ ہمارے ہیں 3 آفریدی پاکستان کے، جناب یحییٰ خان آفریدی صاحب پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور یہ ایسے چیف ہیں جنہوں نے اپنے سارے اختیارات خود سرنڈر کر دیے آج کی حکومت کے سامنے۔ اور آج کی حکومت ان سے کیا چاہتی ہے، یہ جب جسٹس نہیں بنے تھے، چیف نہیں بنے تھے، قاضی فیصل صاحب کے ساتھ مل کے جو بھی حکومت کے لیے سہولت فراہم کر سکتے تھے ان کی طرف سے کی گئی، اور جب یہ چیف جسٹس پاکستان بن گئے اور انہوں نے اپنے اختیارات اس طرح سے سرنڈر کر دیے کہ صرف نام کے چیف جسٹس ہونا قبول کر لیا۔ آئین میں باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تک یہ رہیں گے چیف جسٹس کہلوائیں گے، اور جب یہ چلے جائیں گے تو آئندہ کے لیے جو چیف بنے گا سپریم کورٹ کا، جو ہیڈ ہوگا، جس طرح سے یہ ہیں ان کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں کہا جائے گا، سربراہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ ذمہ داری یا پھر یہ تاج سجا دیا گیا ہے آئینی عدالت کے چیف کے سر پر۔ ایک یہ یحییٰ خان آفریدی صاحب ہیں، اور ان کی عدالت میں جو انصاف کے لیے جاتا ہے، جیسے کہ کل سہیل آفریدی گئے تھے، ان کی اپنی قوم کے بندے ہیں، تو ان کی قوم کو بالکل مد نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے انصاف فراہم کرنا تھا، لیکن وہاں پہ یہ بے بس نظر آئے، بے حس نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن لالچ کی وجہ سے انہوں نے سارا کوئی سرنڈر کیا، اور اپنے عہدے کے لیے انہوں نے کیا کیا فرمائشیں نہیں مان لی۔ انصاف دینے سے قصر رہے، حس ان میں ضرور موجود ہے، بے حس نہیں ہے، لیکن بے بس ہے، اور خود ہی بے بس بن کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح سے چلتے ہیں اگلے آفریدی کی طرف، یہ ہیں سہیل آفریدی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، اپنی ہتھیلی پر اپنی جان لیے پھرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، عمران خان سے ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو بڑا ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ بندے بن جاؤ، تیرا میں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں وہاں پہ آپریشن کرنے دو، لیکن وہ نہ تو وہاں پہ انخلا کے لیے آمادہ تھے، تیار تھے، متفق تھے، اور نہ ہی وہاں پہ کسی قسم کا آپریشن ہونے کے لیے یہ قائل ہیں، اجازت دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے افغانستان کے حوالے سے بھی ان کا ایک موقف ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے موقف کی افغانستان کے حوالے سے قطعی طور پر تائید اور حمایت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے
दहशत गर्दी आती है, तालिबान हुकूमत ये सारा कुछ कराती है, इसमें कोई शक नहीं रह जाती। लेकिन इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो सबूत दिए जाएँ कि वाकई तालिबान हुकूमत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाती है। ये हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि अफरीदी ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं या नहीं कहते, उनकी ज़ुबानी तो नहीं सुना। बहरहाल हुकूमत की तरफ से ये कहा गया अगर ऐसा है तो इससे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। तो बाकी इमरान खान की रिहाई के लिए वो किसी भी हद तक आगे चले जाते हैं। उनको कितने मसाइब का, मुश्किलात का सामना है, उन पर भी मुकदमे पे मुकदमा बनाया जा रहा है और उन पर वो मुकदमा भी बना दिया गया 9 मई के हवाले से कि ये रेडियो पाकिस्तान पर हमलावरों के साथ मौजूद थे। फोरेंसिक कहाँ से करवाया गया? पंजाब की लेबॉर्ट्री से करवाया गया, जिस हुकूमत की सरबराह मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं। बहरहाल बात हम कर रहे थे कि एक वो अफरीदी है याह्या खान अफरीदी और एक ये अफरीदी है सुहेल खान अफरीदी। तीसरा के हवाले से इनका मौक़िफ़ है कि बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इनके साथ एक तीसरा अफरीदी भी है, वो शाहिद खान अफरीदी साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रिकेट का नाम कभी हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वो सियासत में टांग अड़ाने लगा है उसके बाद उसकी इज्जत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है अगर वो सियासत में ना आता। इसी तरह से इमरान खान के हवाले से भी कहा जा सकता है कि इमरान खान सियासत में ना आते तो वो पाकिस्तान के मुतफिक का हर बंदे के हीरो होते। आज भी इमरान खान अक्सरियत के हीरो हैं, लेकिन उनके मुखालिफ लोग भी मौजूद हैं। वो सियासत में आए तो फिर बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। शाहिद अफरीदी भी सियासत में आए तो गैर जानबदार ना रह सके। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब पालश पे पालश, मालिश पे मालिश किए जा रहे हैं, इसी तरह से सुहेल अफरीदी की तरफ से भी यही सारा कुछ किया गया। सियासत में टांग अड़ाते हैं, हर मामले में टांग अड़ाते हैं। इमरान खान पर भी तनकीद कर देते हैं। इमरान खान पर तनकीद करना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी को खुश करने के लिए किसी की तारीफ कर देना या किसी की बदखोई कर देना, किसी पर तोहमत लगा देना, किसी पर इस पर बात हो सकती है, इसकी हमायत नहीं की जा सकती। और ऐसा कोई शाहिद खान अफरीदी साहब कर रहे हैं, हर मामले में टांग अड़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे इनके ख़ानदान के लोगों के साथ इनकी बरादरी पर जिस तरह से वादी तिरम में जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, वहाँ पर ना तो उन्होंने बात की, ना वहाँ पर गए हैं। वहाँ पे इनको जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ये नहीं गए। इधर उधर टांग अड़ाने का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी तरफ से एक मरतबा फिर ज़ोरदार किस्म की मालिश की गई है, पालिश की गई है। तो इन्होंने बिजली को सस्ता कर दिया है, अपने लिए 4 रुपये यूनिट बिजली सस्ती की गई है। इनकी तरफ से कहा गया है कि सनतकारों के लिए, कारखानों के लिए 4 रुपये बिजली सस्ती कर रहे हैं। तो कारखाने किसके हैं, बिजनेस किसका है, सनतें किसकी हैं? इन्हीं के ख़ानदान की सनतें हैं। वो देख लें ज़रा जाके, इनकी शुगर मिल, जिसको नाला, बहुत बड़ा नाला जाता है, झंग में है। इसी तरह से इनकी और भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह से इत्तेफाक फाउंड्री भी कभी इनकी हुआ करती थी। इस तरह की कई इनकी फाउंड्रीज हैं, कई इनकी मिलें हैं, कई इनके कारखाने हैं। तो अपने लिए इनकी तरफ से 4 रुपये बिजली सस्ती की गई है। जैसा कि कहा कि ज़ोरदार मालिश भी करते हैं, पालिश भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपके सामने मुख्तसर सी खबर रख देनी चाहिए। तवील खबर है, लेकिन उसमें हम नहीं जाते। अगर वो पढ़ेंगे तो तकरीबन 10-15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये कोई 1.5 मिनट की आपके सामने, जिस तरह से इन्होंने मालिश की है, जिस तरह से पॉलिश की है, जिस तरह से बिजली के निरख इनकी तरफ से कम किए गए हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले ये बात कर लें कि जब ये इक़्तिदार में आए थे, PDM इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट के भाजपा के साथ मिल के इक़्तिदार में आ गए, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान उठा। बिजली 16 रुपये यूनिट थी, उसके बाद 60, 70, 80 तक भी गई है। तो उसमें से 4 रुपये इनकी तरफ से कमी की गई है। किसके लिए? सनतकारों के लिए। बाकी लोगों के लिए वही पहले वाला ही रेट चल रहा है। कह रहे थे कि 16 रुपये इमरान खान की तरफ से बिजली महंगी है, 150 रुपये पेट्रोल महंगा है, खुद है पेट्रोल 350 रुपये और बिजली 16 रुपये से 80 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये कर दी गई। अब 4 रुपये उसमें कमी की गई है। आपके सामने रखता हूँ कि इनकी तरफ से क्या बयान जारी किया गया है, जिसमें आपको ये पालिश करते हुए भी शहबाज शरीफ साहब नजर आएंगे। बयान में कहा गया कि सनतों के लिए बिजली 4 रुपये यूनिट से जायद सस्ती कर रहे हैं, बरामदी कर्ज पर शरह सूद, व्हीलिंग चार्जेस भी कम कर रहे हैं।
साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि हुकूमत और फौज में बेहतरीन पार्टनरशिप है, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल की सपोर्ट ना होती तो कई मसाइल हल मैं ना कर सकता। साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि इत्तेहाद रहा तो हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे, पाकिस्तान इतना मजबूत बन चुका है, बिजली टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे कमी की जा रही है, एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग 7.5 से कम करके 4.5% कर दी है, व्हीलिंग चार्जेस में 9 रुपए कमी की गई है। साथ उनकी तरफ से बरामद कुनगान के लिए ब्लू पासपोर्ट का ऐलान भी किया गया है। शहबाज शरीफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब पहले हम पाकिस्तान से बाहर जाते थे तो हमें कोई पूछता नहीं था, लेकिन जिस तरह से बुनियानुल मसूल पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया है, भारत को नाको चने चबाए हैं, आप जहाँ भी जाते हैं हमें सलूट पढ़ते हैं, सलाम किया जाता है। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ट्रंप को सलाम कर रहे थे, अब इनको जैसे एयरपोर्ट पर जाते हैं वहाँ पे लोग सलाम करते हैं कि आपने इंडिया को फतह किया है। वाकई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इंडिया को फतह किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आपने देख लिया, बयान से अंदाज़ा लगा लिया कि शहबाज शरीफ साहब कैसे मालिश करते हैं, कैसे पॉलिश करते हैं, और किस तरह से इनकी तरफ से 4 रुपए 4 पैसे बिजली कम की गई है, और व्हीलिंग चार्जेस वो भी 9 रुपए कम किए गए हैं। वो किसके लिए कम किए गए हैं? वो भी इनके अपने लिए कम किए गए हैं। व्हीलिंग चार्जेस क्या होते हैं? व्हीलिंग चार्जेस कंपनियां बिजली पैदा करती हैं, लेकिन जहां तक पहुंचानी होती है वहां तक लाइनें उनके पास नहीं होती, हुकूमत की लाइनें इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर जो उन पर चार्जेस बनते हैं उनको व्हीलिंग चार्जेस कहते हैं। उनमें 9 रुपए की कमी कर दी गई है, और IPP भी इनके अपने पुत्र की भी हैं, अपने रिश्तेदारों की भी हैं, अपने अजीजों की भी हैं। तो एक ही इकदाम से, या फिर यूं समझे कि एक ही वार से इनकी तरफ से किस तरह से डबल ट्रिपल फायदे हासिल किए गए हैं। चलते हैं मुर्तज़ा जंगवी की तरफ। मुर्तज़ा जंगवी कौन होगा? आप भी हैरान होंगे, लेकिन जब हम आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। वही लड़का, वही नौजवान जो लाहौर आया था, और उसकी बीवी और बेटी गटर में गिर गए थे, हुकूमत की तरफ से इनकार किया गया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से सख्ती की गई, वो बड़ी बरम हुई, उन्होंने कई अफसरों को रिमूव कर दिया, बरतरफ कर दिया, घरों को भेज दिया, लेकिन ये सारे छोटे अहलकार थे, बड़े बड़े बच गए, खुद भी बच गई। और उज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई तो फिर इनको घर भेजें। वहाँ पे तो मुहज़्ज़म ममालिक में वो ज़रा इस्तीफ़े दे जाते हैं, लेकिन ये माफ़ी पर अपना काम चला रहे हैं। तो बात हम कर रहे थे मुर्तज़ा की, उसकी तरफ से कहा गया कि मुझे कैसे गिरफ्तार किया गया, DSP ने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ थानेदार ने क्या किया। उस बेचारे को तीसरे चौथे रोज मीडिया के सामने पेश किया गया, और उसके लिए फिर ऐलान किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, एक तो उसको टैक्सी देने का ऐलान किया गया है कि उसका रोजगार हो जाए, और दूसरा उसको 1 करोड़ रुपया देने का भी ऐलान किया गया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि टैक्सी वो कबूल कर ले, लेकिन उसने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी बीवी और बेटी नहीं मिल सकती 1 करोड़ रुपए में। हो सकता है कि ये बड़े बड़े लोग 1 करोड़ रुपए आपस में बांट लें, तो वैसे उसको मेरा ख्याल है कि 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने उनके लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया, टैक्सी का ऐलान किया, तो रिश्ते का ऐलान भी कर दें, क्योंकि उसकी बीवी फौत हुई है, उसको रिश्ता चाहिए, रिश्ता दे दें तो उसके लिए फिर सत्ते ही खैरे हैं। चलते हैं गिद्ध की तरफ। जिस तरह से बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब होते हैं, इसी तरह से गिद्ध को मुर्दार का ख्वाब होता है, तो इसी तरह से चूहे को शराब का भी ख्याल आ जाता है। चूहे को नहीं बल्कि चौहान साहब की बात कर रहे हैं, ये हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। इनको भी जिस तरह से चूहे को शराब का ख्याल आता है, इनको भी नामुरादी का ख्वाब आया, ख्याल आया, जैसे बिल्ली को छिछड़ों के, गिद्ध को मुर्दार के, और इनको भी, इस चूहे को भी, चूहे नहीं बल्कि चौहान को, इनको भी ऐसा ही ख्वाब, इनको नामुरादी का ख्वाब आया है, ख्याल आया है। इनकी तरफ से क्या कहा गया, ये कहते हैं कि हालात वाक़यात बता रहे हैं कि जिस तरह D चौक में अली अमीन गंडापुर के गरेबान पर हाथ डाला गया था, बिल्कुल वैसे ही सुहेल अफरीदी की बारी आ चुकी है। ये इनकी तरफ से कहा गया फयाजुल हसन चौहान की तरफ से। इनको ऐसे ही ख्वाब आते हैं, और ये इमरान खान का कभी बहुत करीबी हुआ करता था, लेकिन फिर जैसे ही थोड़ी सी तपश आई, ये इमरान खान के खिलाफ इसी तरह से हो गया, जिस तरह से परवेज़ खटक सारे एहसानात को भूल के इमरान खान की किरदार कुशी करने लगे, और ये चौहान भी उसी तरह से इमरान खान की किरदार कुशी पर तुला बैठा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।